أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. بے شک اللہ تبارک و تعالی شرماتا نہیں ہے. ان یضرب مثلا ما، کوئی بھی مثال دینے سے، بعوضتاً مچھر کی یا پسو کی ہو، فما فوقها یا اس سے گھٹیا درجے کی ہو. فاما الذین آمنوا، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے، فیعلمون، وہ لوگ تو جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، کہ بے شک وہ، یعنی یہ جو مثال جو دی گئی ہے وہ یہ برحق ہے ان کے پروردگار کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بہرحال وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، فَيَقُولُونَ، پھر وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اس مثال کے ذریعہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد کیا ہے، اللہ کا منشا کیا ہے، اللہ کا ارادہ کیا ہے. یضل بہ کثیرا، اس مثال کے ذریعہ سے اللہ تبارک و تعالی بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے. ویہدی بہ کثیرا، اور اس مثال کے ذریعہ سے اللہ تبارک و تعالی بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اس مثال کے ذریعہ سے گمراہ نہیں ہوتے مگر فسق و فجور کرنے والے. الذین ینقضون عہد اللہ، فاسق اور فاجر وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو توڑتے ہیں. من بعد میثاقہ، اس وعدے کو، میثاق کو، عہد و پیمان کو مضبوط کرنے کے بعد. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور توڑ دیتے ہیں، قطع تعلق کرتے ہیں ان چیزوں کا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین کے اندر میں فساد پھیلاتے ہیں. اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے. کیف تکفرون باللہ، اللہ کے ساتھ تم کیسے کفر کرتے ہو، اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو. وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو زندہ کیا. ثم یمیتکم، پھر اللہ تعالیٰ تم کو مارے گا، وفات دے گا. ثم یحییکم، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ تم کو زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا.
हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वो है जिसने तुम्हारे लिए पैदा किया उन तमाम चीज़ों को जो ज़मीन के अंदर में है। सुम्मा इस्तवा इला समा, फिर अल्लाह तबारक व तआला मुतवज्जे हुआ आसमान की तरफ, आसमान के बनाने की तरफ। फसव्वाहुन्ना सबअ समावात, 7 आसमान बनाए। व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ को जानने वाला है। पहले जो आयत है जिसका तर्जुमा किया गया, इन्नल्लाह ला यस्तही अन यदरिबा मसलन मा बऊदतन फमा फौकहा, अल्लाह तबारक व तआला मच्छर की या मच्छर से कम दर्जे पिस्सू की या मक्खी की या मकड़ी की मिसाल देने से अल्लाह ताला शर्माता नहीं है। इसका शान नुज़ूल ये है कि शुरू के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से चैलेंज फेंका गया कि अगर ये कुरान तुम्हारे दावे के मुताबिक अल्लाह की उतारी हुई किताब नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाथ से लिखी हुई मन गढ़ंत किताब है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने चैलेंज फेंका। सबसे पहले अलिफ लाम मीम के ज़रिया से, हुरूफ मुक़त्तआत के ज़रिया से, ये 14 हुरूफ के ज़रिया से लिखे गए जो हैं उसका माना और मतलब बताओ, नहीं बता पाए। फिर उसके बाद में दूसरा चैलेंज आया, इस जैसी किताब को ले आओ, नहीं ले पाए। फिर कहा कि 10 सूरतें ले आओ, नहीं बना पाए। फिर 1 सूरत का चैलेंज हुआ, नहीं ला पाए। थक गए, आजिज़ आ गए, फसाद और बलागत के एतबार से इस कुरान पाक का मुकाबला करने से आजिज़ आ गए। तो उन्होंने ये कहा कि अगर ये अल्लाह की किताब होती और आसमानी किताब होती तो अल्लाह ताला खालिक कायनात है। मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार अल्लाह को मानते थे, अल्लाह की ज़ात को मानते थे, अल्लाह की सिफ़ात को मानते थे, हर चीज़ का खालिक और मालिक अल्लाह को मानते थे, रोज़ी देने वाला अल्लाह को मानते थे, सारी सिफ़ात को मानते थे, बस सिर्फ जो है शिर्क करते अल्लाह ताला की ज़ात के साथ। इनका कहना ये था कि अगर ये आसमानी किताब है और अल्लाह की उतारी हुई किताब है, तो इतना बड़ा अल्लाह जिसने आसमानों को, ज़मीनों को, सारी कायनात को पैदा किया, तो अपनी किताब के अंदर में वो मच्छर का जिक्र करता है, अपनी किताब के अंदर में मक्खी का जिक्र करता है, अपनी किताब के अंदर में मकड़ी का जिक्र करता है। अगर अल्लाह की किताब होती तो अल्लाह मच्छर, मकड़ी और मक्खी का जिक्र न करते। इससे मालूम हुआ कि ये नाऊज़ु बिल्लाह आसमानी किताब नहीं है, अल्लाह की उतारी हुई किताब नहीं है। कुरान पाक के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने उन बेईमानों की मिसाल बयान फरमाई कि जो लोग अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह की पूजा करते हैं, बुतों की इबादत और पूजा करते हैं। तो ये जो बुत हैं, इनके ऊपर में उनके पुजारी, चढ़ाने वाले, वो मिठाई चढ़ाते हैं। तो उसके बाद में कोई मक्खी आती है और मक्खी उससे एक मिठाई अपने मुंह में डाल करके ले जाती है। फिर भी ये माबूदाए बातिल और बुत इस मक्खी को रोक नहीं सकते और इस मक्खी के मुंह से जो मिठाई उसने छीन ली है बुतों पर से, उसको खींच नहीं सकते। कुरान पाक के अंदर में आयत भी मौजूद है, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दुनिल्लाहि लन यख्लुक़ू ज़ुबाबन वलौ इस्तमऊ लह, बेशक वो लोग कि जो अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह को पूजते हैं, पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, ये मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। मक्खी तो पैदा करना दूर की बात है, उनके बुतों के ऊपर में जो चढ़ा जाता है, अगर वो मक्खी छीन करके ले जाए तो उसको वापस नहीं ला सकते। उलमा और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने मक्खी की मिसाल बयान फरमाई। अरबी ज़बान के अंदर में
मक्खी को कहते हैं ज़ुबाब। ज़ुबाब का माना मक्खी। और ये ज़ुबाब का जो लफ्ज़ है ये ज़ब्ब यज़ुब्ब ज़ुबाब से बना हुआ है। ज़ब्ब यज़ुब्ब ज़ुबाब का माना है हटाना, दूर करना। मक्खी आती है, नाक पर बैठी, उसको हटाया, राउंड लगाएगी, चक्कर काटेगी, फिर आएगी, फिर गाल पर बैठेगी, फिर उसको हटाते हैं। यानी मक्खी एक ऐसी चीज़ है कि बार बार आती है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मिसाल के अंदर में मक्खी की मिसाल दी। चींटी एक मरतबा अगर शक्कर का दाना उसको मिल गया तो वो अपने बिल के अंदर में चली जाती है, फिर उसी जगह के अंदर में वापस नहीं आती। बहुत से जानवर हैं, उनकी ये खुसूसियत है। ऊँट है, ऊँट मिसाल दी गई हदीस शरीफ के अंदर में कि कोई आदमी हाफिज कुरान बने और उसको याद करना छोड़ दे तो ये भूल जाता है। जिस तरीके से ऊँट की नकील अगर छोड़ दी जाए तो वो भागता ही रहता है, भागता रहता है और वापस नहीं आता। सांप है, सांप अपने बिल की तरफ वापस आता है। इसलिए हदीस शरीफ के अंदर में आया कि इन्नल ईमान लयअरिज़ु इलल मदीनती कमा तअरुज़ुल हय्यतु इला जोहरिहा। कुर्ब क़यामत आखिर ज़माने के अंदर में ईमान सिमट करके बाकी रह जाएगा मदीना मुनव्वरा के अंदर में। ईमान मदीना मुनव्वरा वालों के अंदर में बाकी रहेगा। पूरी दुनिया के अंदर में जो ईमान और इस्लाम फैला हुआ है ये वापस आता आता मदीना तक सिमट करके रह जाएगा। मिसाल दी कमा तअरुज़ुल हय्यतु इला जोहरिहा। जिस तरीके से सांप अपने बिल से निकलकर अपनी ग़िज़ा को तलाश करते 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 दूर तक जाता है और शाम के वक्त के अंदर अपने बिल की तरफ वापस आ जाता है। तो जानवरों के अंदर में सिफत है, खासियत है। मक्खी के अंदर में सिफत है बार बार उसका आना। ऐसी मक्खी के जो बार बार आती है, बुतों के पास से मिठाई उठा करके ले जाती है, ये बुत इतने कमज़ोर है कि उसको रोक नहीं सकती, हटा नहीं सकती। ज़अफ़त तालिब वल मतलूब आयत के आखिर के अंदर में लिखा हुआ है। पुजारी भी कमज़ोर और महादेव भी कमज़ोर। तालिब यानी पुजारी, मतलब यानी महादेव जो बैठा हुआ होता है वो। ज़अफ़त तालिब वल मतलूब। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने मक्खी की मिसाल दी। दूसरी जगह के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने मकड़ी की मिसाल दी कि ये जो गैरुल्लाह को पूजते हैं, इबादत करते हैं, तो उनकी मिसाल ऐसी है। ये जो दुनियावी माल सामान वगैरह जमा करते हैं उनकी मिसाल ऐसी है का बैतिल अनकबूत। अनकबूत मकड़ी को कहते हैं। बैत यानी घर, मकड़ी का जाला। मकड़ी अपना जाला बनाती है वीरान मकान के अंदर में, वीरान रूम के अंदर में, और पूरी यूँ समझती है कि मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है। मकान मालिक आता है, एक झाड़ू के ज़रिया से उसके मकान को ख़त्म कर देते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुनियावी चीज़ों को समझाने के लिए मिसाल दी कि दुनियावी चीज़ें ऐसी हैं जैसा कि मकड़ी का जाला। कबैतिल अनकबूत इत्तखज़त बैता व इन्न औहनल बुयूति लबैतुल अनकबूत। तमाम घरों के अंदर में सबसे ज़्यादा कमज़ोर घर जो है वो मकड़ी का घर है। तो अल्लाह ताला ने कहीं पर मिसाल दी मक्खी की, कहीं पर मिसाल दी ये मच्छर की, और कहीं पर मकड़ी की, मच्छर की और मक्खी की ये मिसालें दी अल्लाह तबारक व तआला ने। इस पर इन लोगों ने यूँ कहा कि अगर ये अल्लाह की किताब होती तो अल्लाह की किताब के अंदर में मकड़ी का तस्कीरा न होता, मच्छर का तस्कीरा न होता, मक्खी का तस्कीरा न होता। ये घटिया किस्म की चीज़ें बयान करना ये दलील है कि नऊज़ु बिल्लाह ये आसमानी किताब नहीं है। इसका जवाब अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर में दिया। इन्नल्लाह ला यस्तही, बेशक अल्लाह तबारक व तआला शर्माता नहीं है, अन यज़रिब मसलन, कोई भी मिसाल बयान करने से, मसलन मा, कोई भी मिसाल बयान करने से, बाऊदतन, बाऊदा
یا تو مچھر کو کہتے ہیں یا تو پسو کو کہتے ہیں، پسو کو بھی بعوضہ کہتے ہیں اور مچھر کو بھی بعوضہ کہتے ہیں۔ فما فوقہا، یا اس سے کم درجے کی، مچھر اور پسو یہ چھوٹی سی مخلوق ہے، اگر کوئی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی جو گھٹیا درجے ہونے کے اندر میں، اگر اس سے بھی کم درجے کی اگر کوئی مخلوق ہے فما فوقہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مثال دینے سے شرماتا نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو مثالیں دی مکڑی کی، مچھر کی، پسو کی، یہ اس لیے مثالیں دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مثالوں کے ذریعہ سے معبودان باطلہ کو اور بتوں کو گھٹیا درجے کا بتلانا چاہتے ہیں، ایک دم سے ذلیل درجے کا بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ معبودان باطلہ اتنے رذیل ہے، اتنے ذلیل ہے، اتنے گھٹیا درجے کے ہیں کہ مکھی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، یا مچھر کا اور مکڑی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس سے بھی کم درجے کی اگر مثال دینے کی ضرورت پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مثال دینے سے شرماتا نہیں ہے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا فاما الذین آمنوا، بہرحال وہ لوگ جو کہ ایمان لائے، قرآن پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، اس قرآن پاک کے آسمانی کتاب ہونے پر ایمان لائے، تو فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو وہ لوگ جانتے ہیں، یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ بے شک یہ مثالیں جو قرآن پاک کے اندر میں دی گئی، چاہے مچھر کی ہو یا پسو کی ہو یا مکھی کی ہو یا مکڑی کی ہو، الحق من ربہم، یہ ان کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے۔ تو ان کا ایمان باقی رہا، ان کا ایمان قائم رہا، اللہ نے یہ مثالیں دی اور قرآن پر، اللہ پر، رسول پر ایمان لانے والوں نے ان مثالوں کو اللہ کی طرف سے سمجھا، یہ مثال اللہ نے دی، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، تو ان کا ایمان باقی رہا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ، اور بہرحال وہ لوگ جن لوگوں نے انکار کیا، کفر کیا، قرآن کے آسمانی کتاب ہونے کا انہوں نے انکار کیا کہ یہ آسمانی کتاب نہیں ہے، کفر کیا، فَيَقُولُونَ، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس مثال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ مچھر کی مثال دے کر اللہ کا مقصد کیا ہے؟ مکھی کی مثال دے کر اللہ کا مقصد کیا ہے؟ اور مکڑی کی مثال دے کر اللہ کا مقصد کیا ہے؟ ایمان والے اپنے ایمان پر باقی رہے اور انکار کرنے والوں نے مثالوں کا بھی انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، کلام الہی ہونے کا انکار کیا، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ یہ تو مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری سمجھانے کے لیے، لیکن یہ مثالیں کسی کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گئی اور کسی کے لیے گمراہی کا ذریعہ بن گئی۔ ان مثالوں کے ماننے والے ہدایت یافتہ ہو گئے اور ان مثالوں کے انکار کرنے والے گمراہ ہو گئے۔ یضل بہ کثیرا، اس مثال کے ذریعہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، ویہدی بہ کثیرا، اور ان مثالوں کے ذریعہ سے بہت سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا فرماتے ہیں، منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اس مثال کے ذریعہ سے گمراہ نہیں ہوتے مگر فسق کرنے والے، فاسقین۔ اب ایک سیدھی سادی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے سامنے دونوں راستے بتا دیے، یہ گمراہی والا راستہ اور یہ ہدایت والا راستہ، یہ جنت والا راستہ اور یہ جہنم والا راستہ، یہ ہدایت والا راستہ اور یہ ضلالت اور گمراہی والا راستہ۔ اس کے بعد میں انسان کو
अल्लाह तबारक व तआला ने अक्ल दी, दिमाग दिया, दिल दिया, सोचने की ताकत दी, और अल्लाह ताला ने उसको इख्तियार दे दिया, इख्तियार कुल्ली। तेरे इख्तियार में अगर तू चाहे तो ये रास्ता इख्तियार कर, और तेरे इख्तियार के अंदर में है, तू चाहे तो ये रास्ता इख्तियार कर। गुमराही वाला रास्ता इख्तियार करेगा उसके बस की बात में है, हिदायत वाला रास्ता इख्तियार करेगा उसके बस की बात है। अल्लाह तबारक व तआला किसी को किसी भी रास्ते पर चलने के लिए मजबूर नहीं करता। ईमान वाला हिदायत के रास्ते पर चलता है तो मजबूर होकर के नहीं चलता, अपने इख्तियार से चलता है। गुमराही वाला गुमराही के रास्ते पर चलता है, मजबूर होकर के नहीं चलता, अपने इख्तियार से चलता है। जहन्नम वाला रास्ता उसने इख्तियार किया, पसंद किया अपने इख्तियार से, और हिदायत वाला रास्ता, जन्नत वाला रास्ता इख्तियार किया अपने मर्जी से, अपने इख्तियार से। बंदा और इंसान जो है मजबूर महज नहीं है, मजबूर महज नहीं है। जैसे कोई डेले को अगर आपने छत के ऊपर में डाल दिया या किसी कोने के अंदर में रख दिया, 5 साल के बाद 10 साल के बाद आप जाएंगे तो वो डेला वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, ये है मजबूर महज। तो इंसान मजबूर महज नहीं है। इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया और एक हद के अंदर में उसको इख्तियार दिया। अब अल्लाह तबारक व तआला का इल्म अज़ली है और अल्लाह का इल्म अबदी है। अज़ल में यानी जिसकी कोई इब्तिदा नहीं, अल्लाह ताला की ज़ात थी और उससे पहले कोई नहीं था, और अबदी अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी, सारी चीज़ें फ़ना हो जाएगी। अल्लाह का इल्म अज़ली है और अल्लाह का इल्म अबदी है। तो अल्लाह ताला ने अपने इल्म अज़ली के एतबार से और अपने इल्म अबदी के एतबार से लिख दिया कि फ़लाना आदमी जहन्नमी है और फ़लाना आदमी जन्नती है। अल्लाह की लिखने की वजह से वो जन्नती नहीं हुआ और अल्लाह की लिखने की वजह से वो जहन्नमी नहीं हुआ। अल्लाह ताला को मालूम था कि मैं बंदे को इख्तियार दूंगा और बंदा ये रास्ता इख्तियार करेगा जिसके नतीजे के अंदर में वो जन्नत में जाएगा, और ये रास्ता इख्तियार करेगा जिसके नतीजे के अंदर में वो जहन्नम में जाएगा। ये है तकदीर का मसला। सीधी सादी मिसाल यूँ समझ लें कि किसी क्लास के अंदर में कोई अगर मौलाना है या कोई टीचर है, एग्ज़ाम से पहले और इम्तिहान से पहले या एग्ज़ाम और इम्तिहान होने के वक्त के अंदर में कोई एग्ज़ाम लेने के लिए आया, कोई इम्तिहान लेने के लिए आया, क्लास टीचर ने या क्लास के मौलाना ने कह दिया कि ये फलाने 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 ये 5 लड़की या 7 लड़की ये नापास है, नाकाम है। अभी तो इम्तिहान हुआ नहीं, इससे पहले कैसे लिख दिया कि ये नाकाम है। साल भर का तजुर्बा टीचर को होता है या साल भर का तजुर्बा मौलाना को होता है, वो जानता है कि 8-10 तलबा ने कोई मेहनत नहीं की या उनकी फुल गैर हाजिरी है। एक दिन आए इम्तिहान देने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए, कुछ याद नहीं है, तो टीचर ने कह दिया कि ये नापास है, वो नापास है, या मौलवी साहब ने कह दिया कि वो नापास है, वो नापास है, तो उनके कहने की वजह से नापास नहीं होते, उनकी मेहनत न करने के नतीजे के अंदर में वो नाकाम होते हैं। यही मसला है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन मिसालों के ज़रिया से, जिन लोगों ने इन मिसालों को अल्लाह की तरफ से मिसाल माना, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको रहनुमाई फरमाई, हिदायत दी, और जिन लोगों ने इनकार किया तो वो लोग गुमराह हो गए। युदिल्लु बिही कसीरा, इसकी वजह से बहुत से लोगों को अल्लाह ताला गुमराह कर देता है। वयहदी बिही कसीरा, और बहुत से लोगों को अल्लाह तबारक व तआला हिदायत देता है। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और इसके ज़रिया से अल्लाह ताला नहीं गुमराह करते मगर फासिक लोगों को। तकदीर का मसला हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, तो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तकदीर का मसला ऐसा है कि तेरे बस की बात नहीं है, तेरी समझ की बात नहीं है, तेरी समझ में नहीं आएगा। तकदीर का मसला ये है, तेरी समझ में नहीं आएगा। सामने वाले ने पूछा कि वो कौन सी चीज़ है कि जो मेरी समझ में नहीं आए, तो कहा कि बहुत सी चीज़ें हैं जो तू नहीं कर सकता। कहा कि कौन सी चीज़ें मैं नहीं कर सकता। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाया कि खड़ा हो जा। वो खड़ा हो गया। खड़े होने के बाद
اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا داہنا پاؤں اٹھاؤ. داہنا پاؤں اٹھایا, بائیں پاؤں کے اوپر میں وہ کھڑا ہے. کہا کہ داہنا پاؤں رکھ دو, اب بایاں پاؤں اٹھاؤ. تو اس نے بایاں پاؤں اٹھایا, داہنے پاؤں کے اوپر میں زمین پر داہنا پاؤں رکھا اور بایاں پاؤں اٹھایا. پھر کہا کہ رکھ دو. اس کے بعد میں کہا کہ داہنے پاؤں کے اندر میں اٹھنے کی طاقت ہے, صلاحیت ہے, بائیں پاؤں کے اندر میں بھی اٹھنے کی صلاحیت اور طاقت موجود ہے, لہذا دونوں پاؤں کو اٹھاؤ. پہلے داہنے پاؤں کو اٹھایا, پھر بائیں پاؤں کو اٹھایا. اب فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اب دونوں پاؤں کو اٹھاؤ. ظاہر بات ہے کہ دونوں پاؤں کو آدمی نہیں اٹھا سکتا. اس نے کہا کہ نہیں ہو سکتا, نہیں اٹھا سکتا. تو کہا کہ یہ مسئلہ تقدیر کا کہ جو آدمی سمجھ سکتا نہیں ہے. اس لیے ایمان لانا ضروری ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ. اتنا ہم تو جانتے ہیں, والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. علماء نے لکھا ہے والقدر خیرہ و شرہ و حلوہ و مرہ, وحلوہ و مرہ یہ بھی آتا ہے, لیکن چونکہ ہم کو مکتب کے اندر میں وہی سکھلایا جاتا ہے نا, والقدر خیرہ و شرہ, اس لیے وہ دو بولتے ہیں, یاد کرتے ہیں. حلوہ و مرہ بھی آیا, میٹھی تقدیر اور کڑوی تقدیر. حلوہ میٹھی اور مرہ کڑوی, شرہ بری اور خیرہ اچھی. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. ان مثالوں کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ فاسق ہی کو گمراہ کرتے ہیں. فاسق کس کو کہتے ہیں؟ بولتے ہم فاسق, اور فاجر بھی بولتے ہیں. فاسق فاجر ہم بولتے ہیں. یہ فسق سے بنا ہوا ہے, فا سین اور قاف, اس سے بنا ہوا ہے. فسق کا معنی ہے چوہے کا بل کے اندر میں سے نکل جانا. چوہا بل کے اندر میں سے نکل جاوے, اپنے در کے اندر میں سے نکل جاوے, اس کو کہتے ہیں فسق. اور چوہے کو بھی فاسق کہتے ہیں. اور جو چوہیا ہوتی ہے چھوٹی سی, حدیث شریف کے اندر میں اس کے لیے فویسقہ کا لفظ آتا ہے, فویسقہ لفظ آتا ہے. تو بل سے نکل جانے کو فسق اور فاسق کہتے ہیں. شریعت کی اصطلاح کے اندر میں اللہ تعالیٰ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنت طریقوں میں سے نکل جانا, اللہ کی اطاعت سے نکل جانا, اللہ کی فرما برداری سے نکل جانا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دینا, ٹھکرا دینا, تو اسی کو کہا گیا فسق. اب یہ اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی اگر آدمی کھلم کھلا کرتا ہے تو ایسے آدمی کو فاجر کہا جاتا ہے. اگر چپکے سے کرتا ہے تو اس کو فاسق کہا جاتا ہے. بولنے کے اندر میں ہم دونوں بولتے ہیں, فاسق فاجر کا لفظ دونوں ساتھ میں بولتے ہیں. اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے والا چاہے چپکے سے کرنے والا ہے تو اس کو فاسق کہا جاتا ہے, اور علانیہ طور پر کھلم کھلا اگر وہ نافرمانی کرتا ہے تو اس کو فاجر کہا جاتا ہے. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. تو ان مثالوں کے ذریعہ سے اللہ تبارک و تعالی فاسق لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فاسق کی مثال, فاسق کی صفات بیان کی کہ فاسق کس کو کہتے ہیں. الذین ینقضون عہد اللہ. فاسق لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے وعدے کو توڑ دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ایگریمنٹ کو توڑ دیتے ہیں. من بعد میثاقہ, اس کو مضبوط کرنے کے بعد. انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد آدم علیہ السلام کی نسل میں جتنے بھی اولاد پیدا ہونے والی تھی مردوں اور عورتوں کی شکل کے اندر میں,
उनको अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया आलम अरवाह के अंदर में। और हदीस शरीफ के अंदर में आता है कि जैसे ज़र्रा कहते हैं, छोटी छोटी चोटियों को ज़र्रा कहते हैं, है ना। कुरान के अंदर में फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन, ज़र्रा छोटी चोटी को भी कहते हैं ज़र्रा। तो छोटी छोटी चोटियों के बराबर पैदा किया। और उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने अहद लिया और पूछा अल्लाह तबारक व तआला ने, अलस्तु बिरब्बिकुम, मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पालने वाला नहीं हूँ। कालू बला, तो सब ने कहा कि हाँ आप हमारे पालने वाले हैं। हदीस शरीफ के अंदर में आता है, मिशकात में भी है और दूसरी किताबों के अंदर में भी है कि आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से छोटी छोटी चींटियों की शक्ल के अंदर में इंसानों को अल्लाह ताला ने पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम की नज़र एक चींटी के ऊपर में पड़ी तो बारी ताला से पूछा कि बारी ताला ये कौन है? तो बारी ताला ने फरमाया कि ये दाऊद है, आपकी नस्ल के अंदर में, आपकी औलाद के अंदर में वो पैदा होंगे और ये आपकी औलाद में से आपके पोतों के पोते हैं, मतलब आपकी नस्ल में से हैं। आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा बारी ताला से कि उनकी उम्र कितनी है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इनकी उम्र 40 साल की है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 1000 साल की थी। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बारी ताला मेरी उम्र में से 40 साल इसको दे दो, इस दाऊद को दे दो, मेरी उम्र में से 40 साल इनको दे दो। ये तो आलम अरवाह के अंदर में बातचीत हुई। अहद अलस्त जिसको कहा जाता है, अल्लाह तबारक व तआला ने एग्रीमेंट लिया, अहद लिया रब होने का। बहरकैफ इस अहद को और इस एग्रीमेंट को, इस मिसाक को अहद अलस्त कहते हैं। अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला। ये जो अल्लाह ताला ने रब होने का इकरार रूहों से जो लिया था, दुनिया के अंदर में आने के बाद जब इंसान भूल गया, अल्लाह का रब होना भूल गया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया अलैहिस्सलाम के सिलसिले को जारी किया और किताबें अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाई, बस इसीलिए कि ये अहद अलस्त जो है आकर के अंबिया अलैहिस्सलाम याद दिलावे। एक तो ये अहद था। दूसरा एक अहद ये था कि अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया अलैहिस्सलाम से भी अहद लिया और एक अहद जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया गया। मखलूक से, पूरे इंसानों से अहद लिया, अंबिया अलैहिस्सलाम से लिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अहद लिया। क़यामत के दिन जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर में आए, उन्होंने अल्लाह की दावत और तबलीग की बातें अपनी उम्मत को और मखलूक को पहुँचाई, तो मखलूक इनकार करेगी। ये उम्मत मुहम्मदिया जो है वो गवाही देगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए गवाही देंगे। वजीअना बिका अला हाउलाई शहीदा, अल्लाह ताला लाएंगे। बहरकैफ ये जो रिवायत के अंदर में आया कि आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्र में से दाऊद अलैहिस्सलाम को 40 साल की उम्र दे दी। अंबिया अलैहिस्सलाम की जब वफ़ात होती थी तो फरिश्ता आकर के पूछता था, हमारी तरह नहीं, हमारी तरह एकदम से जो है आदमी मर गया, अटैक का लफ्ज़ है नहीं, आदमी मर ही जाता है। अटैक आता है तो भी दिल बंद हो जाता है और अपनी तभी मौत मरता है तो भी दिल बंद हो जाता है। अंबिया अलैहिस्सलाम पर हमला नहीं किया जाता। अंबिया अलैहिस्सलाम से पूछा जाता था कि तुम्हारा वक्त ख़त्म हो रहा है और हम तुम्हारी रूह कब्ज़ करना चाहते हैं, तो फिर इजाज़त देते तो उसके बाद में रूह कब्ज़ की जाती। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के किस्से के अंदर में लिखा हुआ है, हम सीरत की किताबों में देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं कि वफ़ात के वक्त के अंदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से कौन से अल्फाज थे? अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला, अल्लाहुम्मा
बिर्रफ़ीक़िल आला, अल्लाहुम्मा का माना है ए अल्लाह, बिर्रफ़ीक़िल आला यानी बुलंदी वाले दोस्त, रफ़ीक़ आला से मुराद अल्लाह। तो जिब्रील ने आकर के पूछा कि या रसूल अल्लाह आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, बारी ताला की तरफ से मैं आया हूँ आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए, अगर आप कहें तो अल्लाह तबारक व ताला आपकी उम्र को बढ़ा दे, और अगर आप चाहें तो अपने रफ़ीक से मिलने के लिए आ जाए। ये इख्तियार दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला, मैं रफ़ीक़ आला को मिलना चाहता हूँ। उसके बाद में आपकी रूह को कब्ज़ किया गया। तो अंबिया अलैहिस्सलाम के पास मौत का फरिश्ता आकर के पूछता था। आदम अलैहिस्सलाम की जब वफ़ात का वक्त करीब आया तो मौत का फरिश्ता आया और आकर के रूह कब्ज़ करने की इजाज़त चाही। तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अभी तो मेरी उम्र के 40 साल बाकी है, मेरी उम्र की अभी तो 40 साल बाकी है। तो फरमाया कि वो आलम अरवाह के अंदर में जब बारी ताला से तुम्हारी बात हुई थी कि वो चूटियों की शक्ल के अंदर में एक चमकता हुआ कोई इंसान था, आपने पूछा था कि वो कौन, तो कहा था कि दाऊद। फिर आपने अपनी उम्र के 40 साल उस दाऊद को दिए नहीं थे, भूल गए आप। तो आदम अलैहिस्सलाम ने एतराफ़ किया, इकरार किया। तो आदम अलैहिस्सलाम भूल गए तो नस्ल भी जो है वो भूल जाती है। तो ये तो ऐसी बातें हैं कि जो सही हदीस के अंदर में मौजूद है, मैं इसराइलियत बयान नहीं करता, ये हदीस की किताबों के अंदर में मौजूद है। 40 साल की उम्र हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को दे दी थी। तो अल्लज़ीना यनकुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़िही, ये जो अहद पैमान लिया था रब होने का, और हज़रत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के बयानों के अंदर में आज भी मौजूद है कि आदमी दुनिया के अंदर में रब होने का एतराफ़ करे और रब होने का इकरार करे, वरना काफिर मरने के वक्त में भी रब होने का इकरार करेगा, जहन्नमी जहन्नम में जाने के बाद में भी रब होने का इकरार करेगा, आलम बरज़ख के अंदर में कब्र के अंदर में भी बारी ताला के रब होने का इकरार करेगा। लेकिन उस वक्त का रब होने का इकरार करना ये फ़ायदा नहीं देगा। तो ये मेहनत के ज़रिया से ये चाहा जाता है कि आदमी अपने रब होने का एतराफ़ और इकरार ज़िंदगी भर करता रहे। अल्लज़ीना यनकुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़ी, तो ये फासिक और फाजिर होने की एक निशानी ये है। दूसरी निशानी वयक़्तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल, जिन चीज़ों को जोड़ने का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है उन चीज़ों को तोड़ते हैं, या जिन चीज़ों के अंदर में सीला रहमी करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है उसके अंदर में वो क़त्ए रहमी करते हैं। ये दूसरी सिफत है फासिकीन की। सीला रहमी किसको कहते हैं, क़त्ए रहमी किसको कहते हैं? हदीस शरीफ के अंदर में आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैसल वासिलु बिल मुकाफ़ी, लैसल वासिलु बिल मुकाफ़ी, बदला देने वाला ये सीला रहमी करने वाला नहीं है। किसी के यहाँ से कोई हदिया आया और उसके बदले के अंदर में हमने हदिया उसको बेच दिया, उसका छोटा हदिया था हमारा बड़ा हदिया, तो ये सीला रहमी करने वाला नहीं है। वलाकिन्नल वासिला इज़ा क़तअका वसलतहु, वासिल किसको कहते हैं? सीला रहमी करने वाला किसको कहते हैं? तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हारे साथ क़त्ए ताल्लुक़ करे, तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हारे साथ क़त्ए ताल्लुक़ करे, तुम उनके साथ में रिश्ते को और ताल्लुक़ को जोड़ो, इसको कहते हैं सीला रहमी। सीला रहमी जो होती है वो रिश्तेदारों ही के अंदर में होती है। एक रिश्तेदार हमारे साथ में ताल्लुक़ नहीं जोड़ता, किसी वजह से नाराज़ हो गया, हम जाते हैं सलाम करते हैं, सलाम का जवाब भी नहीं देती, फिर भी हमारा फरीज़ा बनता है कि हम उसके साथ में रिश्ता को जोड़ें। यह है सीला रहमी। सीला रहमी का फ़ायदा क्या है? सीला रहमी का फ़ायदा ये है, हदीस शरीफ के अंदर में आया कि मन अरादा अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही व युनसअ लहू फी अथरिही
فلیصل رحیمہ، جو آدمی چاہے کہ اس کی روزی کشادہ کی جائے، من اراد ان یبسط لہ فی رزقہ، جو آدمی چاہے کہ اس کی روزی کشادہ کی جائے، ایک وینسو لہ فی اثرہ، اور آدمی چاہے کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے تو کیا کرے؟ فلیصل رحیمہ، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. اور یہ صلہ رحمی جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے گارنٹی دی ہے. رحم کو جب پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس نے شکایت کی کہ باری تعالیٰ مجھے کون جوڑے گا، سب لوگ مجھے توڑیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وعدہ کیا کہ جو تجھے جوڑے گا اس کو میں جوڑوں گا، اور جو تجھے توڑیں گے اس کو میں توڑوں گا. یہ ہے صلہ رحمی. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، صلہ رحمی کے نتیجے کے اندر میں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے. جتنے بھی اسلامی حقوق ہے، جتنے بھی شریعت کے حقوق ہے، ان کی ادائیگی ہے ایمان والوں کے درمیان میں، اسلام والوں کے درمیان میں. اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی ایمان والا نہیں ہے، غیر مسلم ہے، پڑوسی ہے تو اس کے بھی حقوق ہیں، پڑوسی نہیں ہے، دور کا رہنے والا ہے، اس کے بھی حقوق ہیں. اس طریقے سے انسانیت کے ناطے بھی انسانوں کے ذمے حقوق ہیں. ان تمام کو بجا لانے کا نام صلہ رحمی ہے، اور ان تمام کو ختم کرنے کا نام فساد ہے. اس لیے آگے بیان فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر میں فساد مچاتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے، قطع رحمی کرتے ہیں. اولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر میں پہلی دو آیتوں کے اندر میں تو یہ ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسی مثال دینے سے شرماتا نہیں ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے گمراہ اور ہدایت پانے والوں کی مثال بیان کر دی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاسق کس کو کہتے ہیں اس کی بھی تعریف بیان کر دی. اس کے بعد میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید کی طرف دعوت دیتا ہے. انشاءاللہ آگے عرض کیا جائے گا.